Ajay uncle, we are live. We are live? Okay. Good afternoon, respected and my dear friends. It is a pleasant moment for me to welcome you all and our guest speaker, Dr. Ravi Gupta ji and CA Ashok Kumar Jain ji on the 9th VCM of Rohini CP Study Circle. I am before you with my Rohini Study Circle core team, Sri Ravi Shankar Arora ji, Deputy Convener, CA Vipul Mata ji, Coordinator. Today's VCM is being organized on a very important and relevant topic in today's scenario, latest development, of course, by C. Ashok ji, and new penalties under Income Tax Act. Before moving further, let me announce some important things. हर वेबिनार के साथ कुछ न्यू मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो हमें मैसेज भेजते हैं, दे राइट देयर मेंबरशिप नंबर, मोबाइल नंबर, देयर नेम, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का मैसेज ना भेजें. अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है एंड यू आर अटेंडिंग दिस सेमिनार, डेफिनेटली यू विल गेट द अटेंडेंस और यू विल गेट द CPR. और एक इन्फॉर्मेशन और देनी है जो कि रिलेट करती है 2020 के जो हमारे एनुअल मेंबर्स थे, उनके लिए हमने VCM जो अब चल रहा है इस कैलेंडर ईयर में, वो हमने फ्री रखा है जब तक हमारा VCM चलेगा. वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और जब हम मैनुअल मीटिंग्स करेंगे देन वी विल फाइनलाइज द फीस. और जो नए मेंबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हमने अपने ब्रोचर में फीस मेंशन किया हुआ है. आई एम अगेन रिपीटिंग, वो 1000 रुपीज पे करके हमारा वर्चुअल वेबिनार्स देख सकते हैं. Today's VCM is divided in two technical sessions. First technical session will be taken up by CA Ashok Kumar Jain, which is on latest development. Last VCM जो कि हमारी 27 नवंबर को हुई थी और 8th VCM थी, ये हमारी 9th VCM है. लास्ट VCM से इस VCM तक जो भी अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में हो, GST में हो, कंपनीज एक्ट में हो, ICI के हो, RBI के हो, या कोई और इंफॉर्मेशन हो जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, यूजफुल हो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में, अशोक जी अपने डेलिब्रेशन में उसको कवर करते हैं. और दीज इंफॉर्मेशंस आर रियली very useful for us and it is really a bible for the practicing CAs. लेटेस्ट डेवलपमेंट एक यूनिक फीचर रहा है रोहिणी CP स्टडी सर्कल का since the day of its formation. And second technical session will be taken up by Dr. Ravi Gupta ji, as already informed. It is on the new penalties under Income Tax Act. Without taking further time and giving rest to my tongue, I request C. Ashok Kumar Jain ji to start the first technical session, which is on latest development. Over to Ashok ji. अशोक जी आपकी वॉइस बंद है. स्क्रीन हो गई सर शेयर? यस सर, हो गई सर. Good evening to all. Dr. Ravi Gupta ji, guest speakers of the today program, CA Ajay Jain ji, convener of the study circle, CA Ravi Shankar Arora ji, deputy convener of the study circle, CA Vipul Mata ji, coordinator of the study circle, and my dear friends. I have compiled the notifications and circular issued between our previous webinar to this webinar. First, I will take income tax part. TDS on salary. The CBDT has issued circular on deduction of tax at source from salary during the financial year 2021. Every year, the CBDT has came out with this type of circular on TDS on salary that's to be deducted during the financial year. And this is a very comprehensive circular. इसके अंदर ये आपका सारा कवर करते हैं कि जो करंट रेट्स क्या हैं इनकम टैक्सेस के
प्रोविजंस क्या है सैलरी से रिलेटेड, कंप्यूटेशन सैलरी से रिलेटेड क्या है, और क्या क्या फॉर्म्स हमें एम्प्लॉय से लेने चाहिए, और कैसे रिटर्न फाइल्स करनी है, उसकी कैसे हमें पेमेंट्स करनी है। तो काफी डिटेल्ड में ये सर्कुलर है, इसका जो टीडीएस ऑन सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। Extension of Vivad Se Vivad scheme. The CBTT issued notification and extended the last date for filing declaration under Vivad Se Vishwas up to 28 February 2021. पहले ये डेट 31 जनवरी 2021 थी। उसके बाद में अब जो आप डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं वो फॉर्म नंबर 1 एंड 2 वो आप 28 फरवरी 2021 तक आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो फॉर्म 3 इशू करेंगे और उसके बाद फॉर्म 4 और फॉर्म 5 आपको फाइल करना है टू कंप्लीट दी फुल स्कीम। Clarification on Vivad Se Vishwas scheme. The CBDT has issued circular and clarified certain issue in the form of FAQ number from 56 to 75. ये इन्होंने दूसरा सर्कुलर इशू किया है क्लैरिफिकेशन का। इससे पहले भी एक सर्कुलर आया था जिसमें इन्होंने फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 55 तक इन्होंने उसमें FAQ से दिए थे, और इसके अंदर अब इन्होंने 56 से 75 क्वेश्चंस FAQ के उस माध्यम से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर। Faceless penalty scheme 2021. The CBDT has issued notification and notified the faceless penalty scheme 2021. The board may set up national faceless penalty center, regional faceless penalty center, penalty unit and penalty review unit. बेसिकली इसमें दो नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किए हैं। एक तो जो पेनल्टी स्कीम है वो प्रेस्क्राइब की है इन्होंने, दूसरा उसका जो प्रोसीजर है वो इन्होंने इसके अंदर दिया है। और ये प्रोसीजर सेम है जैसा कि हमारा जो फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम है उसी तरह से ये फेसलेस पेनल्टी स्कीम है। इसके अंदर भी जो हमारे 4 यूनिट काम करेंगे, जिसमें एक तो होगा कि नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, दूसरा होगा रीजनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर, फिर पेनल्टी यूनिट एंड पेनल्टी रिव्यू यूनिट। इसका जो प्रोसीजर रहेगा, अगर मान लो कोई भी आपकी पेनल्टी इनिशिएट हुई है, या तो पहले आपके ऑफिसर ने इनिशिएट की हुई है, या अब जो नए केसेस हो रहे हैं उसके अंदर जो हमारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है वो पेनल्टी इनिशिएट करेगा जो भी असेसमेंट वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन है वो नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर को दी जाएगी। नेशनल फेसलेस सेंटर उसको एलोकेट करेगा रीजनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर में, और जो रीजनल सेंटर है वो पेनल्टी यूनिट को देगा उसका असेसमेंट फ्रेम करने के लिए। जो पेनल्टी यूनिट है वो असेसी से इंफॉर्मेशन मंगवाएगी जो भी उनको चाहिए, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगी। उसके बाद में वो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगी जो कि रिव्यू के लिए पेनल्टी रिव्यू यूनिट के पास जाएगा। तो ये सारा जो है वो फेसलेस चलेगा जो भी पेनल्टीज का है। एक्सटेंशन ऑफ ITR एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जो पहले हमारे जो डेट्स थी वो इन्होंने फिर अभी इंक्रीज की, जो एक्सटेंड की थी डेट्स, जिसके अंदर हमारा जो टैक्स ऑडिट के और जो एनी अदर ऑडिट के जो केसेस थे उनकी 15 फरवरी 2021 की थी, और जो हमारा इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसकी भी 15 फरवरी की इन्होंने, और जो हमारी जुलाई की जो ITRs थी अनऑडिटेड केसेस में वो 10 जनवरी तक इन्होंने एक्सटेंड की थी। और जो नॉर्मल जो केसेस के अंदर जो हमें टैक्स ऑडिट अपलोड करनी थी उसकी डेट इन्होंने 15 जनवरी रखी। तो ये डेट इन्होंने नोटिफाइड की थी। जो ऑल डेट्स अभी ये खत्म हो चुकी है, 15 फरवरी कल तक लास्ट डेट थी जो रिटर्न फाइलिंग करने की। यूनियन बजट। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2021 एंड फाइनेंस बिल 2021 इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2021। GST. Extension of date of form GSTR 9 and 9C. The CBIC issued notification and extended the filing of GSTR 9 and GSTR 9C for the year 1920 from 31st December 2020 to 28 February 2021. जैसा कि आपको पता है कि हमने सेमिनार ये 16 तारीख को क्यों रखा, माटा जी ने इसलिए रखा कि 15 फरवरी तक जो है हमारे जो मैक्सिमम कंप्लायंस थे, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं चाहे TDS के हैं, रिलेटेड टू मार्च 20 वो कंप्लीट हो गए 15 फरवरी तक, चाहे वो रिटर्न्स हो टैक्स ऑडिट हो। लेकिन सिर्फ अब एक ये कंप्लायंस बचा है हमारा जो कि मार्च 20 से रिलेटेड है, जो हमारी GSTR 9 और 9C है उसका 28 फरवरी 2021 है। लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है वो इन्होंने अभी 8-10 दिन पहले ही इन्होंने उसको शुरू किया है, 9C की जो यूटिलिटी थी। Recording of UIN number on invoices. The CBIC has issued notification and it has been decided to give waiver
from the recorded of UIN number on the invoices issued by the retailers, suppliers pertaining to the refund claims from 1st April 2020 to 31st March 2021. ये जो UIN नंबर है बेसिकली ये अलॉट होता है कि जो भी हमारे फॉरेन की जो एम्बेसीज हैं उनके लिए ये नंबर इशू होता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है या फॉरेन एम्बेसीज है, तो उसके अंदर जो सप्लायर या रिटेलर है उनको उसके अंदर यूआईएन नंबर मेंशन करना था इनवॉइसेस के अंदर, लेकिन बहुत सारे जो एम्बेसीज ने परचेज की हुई है उसके ऊपर उनका यूआईएन नंबर नहीं है, तो इन्होंने एक ये वन टाइम इनको रिलैक्सेशन दी है कि भाई आपका अगर यूआईएन नंबर नहीं है तब भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं फॉर द ईयर 2021. SOP for suspension of registration. The CBCT has issued circular and issued standard operating procedure for implementation of the provision of suspension of registration under sub rule 2A of rule 21A of the CGST rule 2017. The rules prescribe where a comparison of return furnished by the registered person under section 39 with the details of outward supplied furnished in form GSTR1 or the detail of inward supply derived based on the details of outward supply furnished by supplier in their form GSTR1 or such another analysis as may be carried out on recommendation of the council show that there are a significant differences or anomalies indicating contravention of the provision of the act or rules made thereunder leading to cancellation of registration of the said person. His registration shall be suspended and the said person shall be इंटीमेटेड इन फॉर्म GSTR REG 31 इलेक्ट्रॉनिकली. बेसिकली इन्होंने ये नए अमेंडमेंट किए थे जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि सस्पेंशन हम कर देंगे यदि आपकी मान लो जो GSTR1 जो है आपकी उस जो आपने और जो हमारा मतलब अगर उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं, मान लो जैसे जो 2B है या हमने जो क्लेम किया है उसके अंदर जो डिफरेंसेस मिलते हैं तो अगर उसका वो सस्पेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई आप एक्ट और रूल्स का कोई वायलेशन करते हैं तो ऑफिसर्स को पावर दी है सस्पेंड करने की. लेकिन जैसे इन्होंने इसके अंदर जो इंटीमेशन देनी थी वो REG 31 के अंदर देनी थी, तो बेसिकली अभी तक जो पोर्टल के ऊपर है जो REG 31 की फैसिलिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो उन्होंने इस SOP में कहा है कि जो हमारी ओल्ड प्रोसीजर था जो REG 17 और REG 18 के थ्रू जो सस्पेंशन होता था, अभी ऑफिसर जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता REG 31 तब तक वो फॉर्म 17 के अंदर वो नोटिस इशू करेंगे और जो असेसी है वो REG 18 के अंदर उसका रिप्लाई करेगा. अमेंडमेंट इन GST रूल्स. The CBDT has used notification and amended goods and service tax rules 2017. The rule 59 has been amended to include. बेसिकली इसके अंदर इन्होंने 3 टाइप के अमेंडमेंट किए हैं. एक तो अगर आप जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR1 इफ ही हैज नॉट फर्निश रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द प्रीसीडिंग 2 months. अगर आप पहले 2 month की अगर 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते. सेकेंड केस में इन्होंने कहा है रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश return every quarter under proviso to subsection 139 shall not be allowed to furnish the detail of outward supplies of goods or services or both under 37 in form GSTR1 or using the invoices furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding tax period. जो क्वार्टरली हमारी जो GSTR1 फाइल करनी है या जिनको जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF का है, अगर उन्होंने प्रीवियस क्वार्टर की या प्रीवियस टैक्स पीरियड की 3B फाइल नहीं की तो वो भी फाइल नहीं कर सकते. तीसरा केस इन्होंने कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी अंडर रूल 86B shall not be allowed to furnish the detail of outward supplies of goods or services or both under 37 section 37 in form GSTR1 or using IFF if he has not furnished the return in form 3B for the previous preceding tax period. तो बेसिकली जो 1% का है जिनका मान लो इन्होंने कहा है कि जिनकी 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर है, अगर किसी भी मंथ में आपकी 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है तो आपको 99% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. उस केसेस के अंदर इन्होंने कहा है कि आपका अगर GSTR1 और आप नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपने GSTR3B प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की फाइल नहीं किया. तो बेसिकली 3 इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं टू रिस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ GSTR1. Waiver of penalty.
The CBIC has issued notification and hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under Section 125 of the SAD Act for non-compliance of provision of notification 14/2020, dated 21st March 2020, between the period from 1st day of December to 31st day of March 2021 related to QR code, subject to the condition that said person complies with the provision of SAD notification from 1st day of April 2021. जैसा कि आपको पता है कि जिनकी भी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है और जो B2C ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको QR कोड जनरेट करना कंपलसरी है, लेकिन इन्होंने कि फर्स्ट इसका वेवर दे दिया कि 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक अगर आपने मान लो QR कोड आप किसी कारण से जनरेट नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इसमें इन्होंने साथ में दे दिया कि जो पर्सन है वो कंप्लायंस करेगा उसका 1 अप्रैल 2021 से। The central government hereby appoint 1st day of January 2021 as the date on which the provision of section 119, 120, 121, 22, 23, 24, 26, 27 and 131 of the Finance Act 2020 shall come into force. तो इन्होंने जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए थे तो उनमें उन्होंने कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2021। Clarification of spending of CSR fund. The MC has issued circular that it is further clarified that spending of CSR fund for carrying out awareness campaign program or public outreach campaign on COVID-19 vaccination program is in an eligible CSR activity under item 1, 2 and 12 of schedule 7 of Companies Act 2013 relating to the promotion of healthcare including preventive healthcare and sanitization, promoting education एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने एक ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, वो आपको सीएसआर की एक्टिविटीज में उसको लिया जाएगा और उसकी सीएसआर स्पेंडिंग मानी जाएगी, आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। द एमसी हैज इशूड नोटिफिकेशन दैट अपॉन पेमेंट ऑफ फीस प्रोवाइडेड बिलो through the web services available on MCA, the registrar shall extend the period of name reserved under Rule 9 by using web services. Basically अभी जो आप नाम अप्लाई करते हैं तो आप जो फीस पे करते हैं वो जो नेम अवेलेबल है आपको नई कंपनी बनाने के लिए वो 20 दिन तक रहता है। तो अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं थी कि 20 दिन के बाद आपको वो पीरियड आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको नया नाम अप्लाई करना पड़ता था। तो अब इन्होंने इसमें एक फैसिलिटी दे दी कि आप अगर 20 दिन के बाद भी मान लो एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फर्स्ट इन्होंने कहा कि 40 days from the date of approval under 9 on payment fees of 1000 rupees paid on before the expiry of 20 days from the date of approval। अगर आप 20 दिन का मान लो आप नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं और आप उसको फिर 40 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं 1000 की फीस देके, और उसके बाद आप 2000 की फीस देके उसको 60 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं 40 दिन के बाद। और मान लो 20 दिन है आपके अभी और आप अब तभी चाहते हैं कि भाई मैं 40 नहीं करके 60 डेज के लिए उसको एक्सटेंड कर दूं तो आपको 3000 की फीस देनी है। तो एक इन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप अप टू 60 डेज तक ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस यू कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी ऑन योर रिजर्व नेम। स्मॉल कंपनी। The MCA has issued notification and amended the definition of small company. That's the paid up capital and turnover of small companies shall not exceed rupees 2 crore and rupees 20 crore respectively. तो ये बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी अनाउंस किया था कि जो स्मॉल कंपनीज की इन्होंने जो डेफिनेशन चेंज की, अब जो भी कंपनीज जिनकी 2 करोड़ से नीचे जिनकी पेड अप कैपिटल है और जिनकी 20 करोड़ से नीचे जिनकी टर्नओवर है वो अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस में आएगी। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो पहले लिमिट थी हमारी 50 लाख थी, जो 50 लाख से इन्होंने 2 करोड़ कर दी और जो पहले लिमिट 2 करोड़ थी उसको इन्होंने 20 करोड़ कर दी। क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको काफी बेनिफिट्स हैं, तो उसको ये बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने काफी कंपनीज इसके अंदर कवर कर ली। जो मेन बेनिफिट्स हैं जो इसके अंदर आपका स्मॉल कंपनी के अंदर, एक तो जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, नॉर्मल कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसके अंदर जो स्मॉल कंपनी होती है उसको 2 बोर्ड मीटिंग कर सकती है। एक इसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं होता। उसके बाद आपको कैश का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंपलसरी नहीं है बनाना स्मॉल कंपनीज के लिए। स्मॉल कंपनीज के ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी एप्लीकेबल नहीं होते और जो पेनल्टीज हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर दैट आर लेसर इन स्मॉल कंपनीज। तो बेसिकली इन्होंने स्मॉल कंपनीज का दायरा बढ़ा दिया
जो भी कंपनीज अब जिनकी कैपिटल 2 करोड़ से कम है या जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से कम है वो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में आएंगी। इसमें स्मॉल कंपनीज में ये भी बेनिफिट है कि मेरे को कारो भी नहीं बनाने की जरूरत है। हाँ जी, वो तो कारों की अगर एप्लीकेबिलिटी स्मॉल कंपनीज पे नहीं है तो इस पे भी नहीं होगी। अब कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी, ये भी इन्होंने फाइनेंस उसमें किया था अनाउंस बजट वाले दिन, उसी का इन्होंने नोटिफिकेशन लिया। द एमसी हैज इशूड नोटिफिकेशन एंड अमेंडेड रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पहले वो कंपनी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे ओपीसी को, अब इन्होंने ओपीसी को कन्वर्ट करने का कह दिया कि आप उसको पब्लिक कंपनी भी बना सकते हैं, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। उसका इन्होंने प्रोसीजर दिया है, उसमें आपको मेमोरेंडम अल्टर करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन उसके अंदर पास करना पड़ेगा। और जैसे 1% कंपनी में तो एक ही पर्सन होता है, अगर मान लो आपको कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और पब्लिक बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। इसी तरह आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए और पब्लिक लिमिटेड के लिए 3 डायरेक्टर्स चाहिए। तो आप इसको अल्टरेशन करके मेमोरेंडम के अंदर आप कोई भी जो ओपीसी कंपनी है उसको आप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। Purchase of minority shareholding. The MC has issued notification and amended the company's compromises, arrangements and amalgamation rules 2016 for purchase of minority shareholding held in demat form. Basically जहाँ पे भी compromises होते हैं या arrangement होते हैं या amalgamations होते हैं तो उसके अंदर जो minority shareholding होती है, अगर मान लो कोई जो कंपनी शेयर होल्डिंग मेजर शेयर होल्डिंग खरीद रही है, अगर वो चाहती है कि नहीं वो 100% माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग भी परचेज करे तो उसके लिए इन्होंने ये प्रोसीजर इसमें प्रेस्क्राइब किया है कि आप जो भी क्योंकि शेयर दो तरह से होते हैं, तो डीमैट फॉर्म में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं। जो भी डीमैट फॉर्म में अगर कोई शेयर्स हैं माइनॉरिटी के तो जो कंपनी परचेज कर रही है उस कंपनी को वो माइनॉरिटी शेयर्स को भी परचेज कर सकती है। उसके अंदर इन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया है कि वो कैसे फॉलो होगा। क्लैरिफिकेशन ऑन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन. The MC has issued circular that it has been decided to allow the companies to conduct their EGM through VC or OAM or OAVM to transact item through postal ballot in accordance with the framework provided in earlier circulars up to 30th June 2021. All other requirement provided in these circular shall remain unchanged. तो basically इन्होंने आपको देखा होगा कि आगे में मैं बताऊंगा कि जो EGM है या AGM है या बोर्ड मीटिंग है वो कोविड-19 के कारण इन्होंने कहा था कि भाई आप उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं और अदर ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू भी आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दी 30 जून 2021 तक। ईजीएम आप वीसी और ओएवीएम पर कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सीआरए फॉर्म. द एमसी हैज इशूड सर्कुलर एंड एक्सटेंडेड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सीआर फॉर्म, फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर 1920 अप टू 31 December 2020. Extension of AOC form. The MC has issued circular and extended the date for filing AOC for CFS, AOC for XBRL, AOC for non-XBRL form for the year 1920 up to 15th February 2021, जो कि कल डेट खत्म हो गई। एक्सटेंडेड डेट थी AOC 4 के लिए। MGT 7 की अभी डेट है क्योंकि वो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ AGM फाइल करना पड़ता है। तो जिनकी भी दिसंबर में AGM हुई है MGT 7 की अभी उसकी डेट है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ AGM. Scheme for condonation of delay. The MC has issued circular and introduced scheme for condonation of delay for companies resorted on Register of Companies between 1st December 2020 to 31st December 20 under Section 252 of the Companies Act 2013 can file any overdue e-form from 1st February 2021 to 31st March 2021. जैसा कि आपको पता है कि कंपनी इन्होंने स्कीम लाए थे कि जो भी आपके ओवर ड्यू डॉक्यूमेंट है वो आप 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज जो कि ऑलरेडी कंपनीज जिनका रजिस्ट्रार ने सस्पेंड कर दी थी कंपनीज को, तो उन्होंने रिस्टोरेशन के लिए एनसीएलटी में दे रखा है। तो उन कंपनीज ने कहा कि भाई हमारा जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं आएगा जब तक हम डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी एनसीएलटी के ऑर्डर्स आते हैं फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ कंपनीज 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो उनके लिए स्कीम है कि जो भी उनके ओवरड्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 फरवरी से लेके 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी। तो बेसिकली उनको एक वन टाइम उन्होंने फैसिलिटी दी है कि उनको जो भी ओवरड्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन एजीएम थ्रू वीसीएम. जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको जो अब एजीएम का भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी डेट, जो कि आप एजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर और
ऑडियो विजुअल मीन से आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने डेट कर दी 31 दिसंबर 2021। तो जो भी हमारी एजीएम मान लो 2021 की हम आगे भी करेंगे, मान लो मार्च 21 की जो एजीएम है वो अब जो कोई डिफरेंट पीरियड के अंदर होती है, 30 सितंबर तक होती है कोई जरूरत, तो आप 31 दिसंबर 2021 तक आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ये कोई डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं मार्च 21 की। मार्च की जो डेट है वो आपकी 30 सितंबर ही रहेगी, लेकिन आपकी जिनकी कुछ डेट्स होती है जो आपकी दिसंबर तक भी जा सकती है, इसलिए इन्होंने एजीएम का उसके अंदर अलाउड कर दिया थ्रू वीसी। इसी तरह बोर्ड मीटिंग के अंदर भी इन्होंने अलाउड कर दिया कि आप बोर्ड मीटिंग भी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं 30 जून 2021 तक। Extension of applicability of CARO 2020. The MC has issued notification and further extended the applicability of Companies Audit Report Order 2020 from 1st April 2020 to 1st April 2021. तो अब जो CARO का नया ऑर्डर है हमारा 2021 का, जो एप्लीकेबल होगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2021 से, जो आगे होगा उस पर ये लगेगा। Companies Amendment Act 2020. The MC has issued notification and notified the 22nd January as the date on which the following provision of said act shall come into force. तो कुछ sections इन्होंने applicable किए हैं 22nd जनवरी से, जो कि Companies Amendment Act 2020 के अंदर थे। इसी तरह इन्होंने एक सेक्शन, एक अलग नोटिफिकेशन दिया है जो कि आपका मर्जर और अमलगामेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 233। उसमें भी इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, जैसे 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज, 1 और मोर स्टार्टअप कंपनीज विद 1 और मोर स्मॉल कंपनीज। तो जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए जो अमलगामेशंस के जो रूल्स हैं उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि आप 1 और मोर स्टार्टअप कंपनीज मर्ज हो सकती है, और 1 और मोर स्टार्टअप कंपनीज विद 1 और मोर स्मॉल कंपनीज में आप मर्जर हो सकते हैं। स्मॉल कंपनीज की जो नई डेफिनेशन दी है वो लागू होगी। Amendment in CSR rules. The Ministry of Company Affairs White Companies Amendment Rule 2021 shifted CR spending mandatory from the voluntary. The Amendment Rule 20 shall come into force on the date of their publication from 22nd January 2021. जो 2020 इनका उन्होंने जो 2 जनवरी 20 से जो इसमें जो ये नोटिफिकेशन लाए हैं, जिसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट इन CSR रूल्स इन्होंने कर दिया है, और CSR रूल्स के अंदर इन्होंने काफी मेजर चेंजेस किए हैं। इसके अंदर जो मेन चेंजेस है इसके अंदर, एक तो इन्होंने जो पहले जो वॉलेंट्री था आपको कंट्रीब्यूशन करना, अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, और इसके अंदर इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो भी कंपनीज है अगर वो CSR का जैसे स्पेंडिंग करनी होती है, उनको 2% की स्पेंडिंग करनी होती है। CSR रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं जिनकी मान लो आपके जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ऊपर है, या जिनकी टर्नओवर 1000 से करोड़ से ऊपर है, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, तो उनपे ये CSR रूल्स लगते हैं। तो CSR एक्टिव पे उनको स्पेंडिंग करनी पड़ती है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर 2% ऑफ द प्रीवियस एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स प्रॉफिट। उसके अंदर इन्होंने कह दिया कि आप उसको 3 साल तक कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के अंदर उसको नहीं करते हैं तो आपको उसको मैंडेटरी उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको एक CSR अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक के अंदर, जिसके अंदर आप उसको ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद में अगर उसको भी आप नहीं करते हैं तो आपको ये मैंडेटरी जो शेड्यूल 7 के अंदर इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए कुछ फंड्स, जैसे अपना PM केयर फंड है या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, उसके अंदर आपको ये फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर आप उसका एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो। और इसके अंदर इन्होंने एक जो CSR कमेटी की रिक्वायरमेंट थी उसमें भी कह दिया कि जिनका 50 लाख से ऊपर CSR फंड है उनको आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज जो बोर्ड है कंपनी का वही CSR कर सकता है। इसके अंदर इन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जैसे जो मान लो ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, या सेक्शन 8 की कंपनीज हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया। जिनका MCA के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, जिनको CSR 1 फॉर्म फाइल करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 से होगा। इसी तरह जो अब इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी वो या तो रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, या सोसाइटी होनी चाहिए, या सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, और उसके बाद 12A का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 80G का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये रूल्स में इन्होंने काफी मेजर चेंजेस किए CSR रूल्स के अंदर। I have compiled the compliance date for the rest month of the February 2021. Thank you all for the patient hearing. Thank you. Thank you, Ashok ji, for your wonderful, very informative
and very useful information on latest development. हर बार की Thank तरह इस बार Thank you, भी sir. आपने हमें भाव विभोर कर दिया. बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी. And now it's time for the second technical session. And the topic is new penalties under the Income Tax Act. सर जितनी जब से पेनल्टी का प्रोविजंस आया है चैप्टर 21 में जो इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टीज का प्रोविजंस है उसमें हेडिंग दिया हुआ है पेनल्टीज इम्पोजेबल, यानी पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है, इसको इम्पोज करना पड़ता है. जब से पेनल्टीज शुरू हुई थी पहले बहुत छोटा सा चैप्टर था, अब ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है. तो जितनी मुश्किल पेनल्टीज होती जा रही है उसको समझाने के लिए भी हमें जिस शख्स की जरूरत है वो भी हमारे सामने आज मौजूद हैं. काफ़ी लर्नड है डॉक्टर रवि गुप्ता जी. आज हमें पेनल्टीज की को इन डिटेल समझाएंगे और खासकर न्यू पेनल्टीज के बारे में. मैं खास तौर पर रेफर करना चाहूँगा सेक्शन 271 AA का, जो अभी सिर्फ 1 साल पुराना बेबी है. फाइनेंस एक्ट 2020 में ये आया था बेबी, और जितनी पावर्स इसमें दी गई हैं उन पावर्स को और बढ़ा दिया गया है इस बजट के प्रपोज सेक्शन 281B में, और जिसमें कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक की बातें की जा रही है. तो इन सब मुद्दों पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रवि गुप्ता जी के साथ. Although he is very renowned and needs no introduction, but as a protocol, I would request CA Ravi Shankar Arora ji, जो कि हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं स्टडी सर्कल के, to read out the brief profile of Dr. Ravi Gupta. Over to Ravi ji. Thank you, Ajay Jain ji, for giving me the opportunity to briefly introduce Dr. Ravi Gupta. Dr. Ravi Gupta did his graduation and post-graduation from Shri Ram College of Commerce. Thereafter, he did LLB from Delhi University and MBA Finance from Faculty of Management Studies. He completed his PhD from Faculty of Management Studies. He was a faculty member at Shri Ram College of Commerce for over 36 years and also has vast practical experience in handling tax matters of trade and industry. He has addressed more than 2,000 seminars on direct taxes organized by ICI, Chamber of Commerce, universities, etc. He was appointed by the Government of India as a member of the committee constituted for simplification of Income Tax Act. He is an independent director of many reputed companies, including Varun Breweries Limited, Dharampal Satyapal Limited. He had been nominated by the government to Central Council of Institute of Chartered Accountant of India and is also a member of Tax Committee of ICI. Now I invite Dr. Ravi Gupta ji for his deliberation. Thank you, CA Ravi Shankar ji. At the outset, let me first of all thank the Rohini Study Circle for inviting me to this seminar today. Thank you, Ashok Jain ji, for a wonderful deliberation, and you have very nicely summarized all the amendments which have recently been introduced by the government. Thank you, sir. CA Bipul Mata ji, Ajay Kumar Jain ji, convener of the study circle. Thank you once again for inviting me to this session today. Before I start the presentation of the penalty, one or two points that I would like to make arising out of the changes that Ashok ji has just mentioned. He also referred to the circular of the Vivad Se Vishwas. One very peculiar thing has happened in that circular. See, when the Vivad Se Vishwas scheme was introduced, there were two rates of tax that were applicable. It was 100% in normal cases, 100% of the tax. And in such cases, they said you can go for the Vivad Se Vishwas provided you have to pay 125% of the tax as the tax under the scheme. So for search and seizure cases, it was 125%. Now, when we refer to search and seizure cases, we thought it is our search and seizure. That is the person who is making the declaration. If there is a search in his case, then he will have to pay 125% tax. But what this clarification has said, the one that was just referred to in Circular 21/2020, which Ashok ji just mentioned,
they have now clarified that even if it is a search of some other person and addition has been made in your account on the basis of that search, then also you have to pay 125% tax. Now we came across a lot of cases where some loan was taken that has been taken as unexplained money in my hand, section 68 addition has been made. So I thought I will have to pay 100% of tax on that. But now if that information has come to the assessing officer on the basis of search of some other person, then the clarification says you have to pay 125% of the tax. Now this is a clarification post the introduction of the scheme. And in many cases what has happened was that I paid 100% tax firstly. I got form number 3 from them accepting my contention. They have charged me 100% tax. I filed a withdrawal letter with the ITAT, withdrawing my appeal, filed form number 4 with the department, showing that 100% tax has been paid. After that, what the department has done is they have removed my form number 3, removed the form number 4, and have uploaded a new form 3 showing the tax liability at 125%. So now you have to pay 125% under the Vivad se Vishwas as per this circular, even though there was no search in your case, even if assessment under 153A, 153C has not been made in the case, some other search was related, so there also 125% tax. That is what I wanted to bring to your attention. सर ये प्रैक्टिकल मेरे केस में भी हुआ बहुत कि केसों में हुआ, हाँ, बहुत केसों में हुआ ये। लेकिन सर उसमें तो जो हमारा जिसका एडिशन हुआ था उसके भी रेट नहीं हुई थी, वो जनरल इंफॉर्मेशन थी उनके पास में कि ये सर्च केस से इंफॉर्मेशन आई है। उस केस में भी इन्होंने जो FAQ 70 का रेफरेंस देके 125% कर दिया उसके अंदर। इनफैक्ट जहां पर भी 147 के बेसिस पर एडिशन हुई है, इन मोस्ट ऑफ दोस केसेस उन्होंने 125% लगा। सो अब अभी तक मतलब पीपल वर सेइंग दैट वी शुड चैलेंज दिस, फाइल अ रिट पिटीशन, अभी तक कोई सामने आई नहीं है पोजीशन, बट देन कोर्ट्स विल से दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम, आपको नहीं सूट करता मत जाओ। लेकिन सर क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल है ना सर इस स्टेज में कि पहले 100% टैक्स दिया 125% हो गया। ऑप्शन यही है कि मत जाइए, लॉक कर लीजिए। सो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। सेकेंडली अशोक जी ने मेंशन करा भी ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज के बारे में, जो अभी एक नया कंसेप्ट आया, उसकी डेफिनेशन भी इनलार्ज कर दी। अब आपने देखा होगा इस बजट में देयर ऑडिट के ऊपर काफी सारी चेंजेस देखी, एंड ऑन विच देयर इज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपका टैक्स ऑडिट की भी लिमिट बढ़ा दी इनकम टैक्स में, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी। जीएसटी का ऑडिट भी हटा दिया। अभी रूमर ये भी चल रहा है कि हो सकता है आपकी स्मॉल कंपनीज को भी ऑडिट के परव्यू से निकाल दें। तो अगर स्मॉल कंपनीज को, जो आपने अभी बताया कि उसकी डेफिनेशन भी इनलार्ज कर दी, अगर उनको भी ऑडिट के परव्यू से निकाल दिया तो फिर तो बहुत सारा ऑडिट का काम आपको रिलीफ मिल जाएगा, उससे आपको ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरी चीज आपने डिस्क्राइब करा हुआ है सीए डॉक्टर रवि गुप्ता, इसको क्लेरिफाई कर दूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इसलिए मुझे इस फर्क नहीं पड़ता। I practice as an advocate, although I am a council member of the Institute of Chartered Accountants, but I am government nominee और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं नॉमिनेट करते। So only because I was not a chartered accountant, I could be nominated to the Central Council. So these were some clarifications that I wanted to bring to your notice. Now we will start with the penalties. Fortunately, इस बजट में कोई नई पेनल्टी नहीं लगाई गई। So this is a big relief in this year. कोई भी पेनल्टी नई इस साल में नहीं आई है, ना ही एग्जिस्टिंग पेनल्टीज के कोई भी प्रोविजन को चेंज किया गया है। तो इस बजट में एक ये मेजर रिलीफ है। सिर्फ एक चेंज करा है जो अभी अजय जी ने मेंशन करा था, 271AA की जो पेनल्टी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटी के ज्यादा रिलेटेड थी वो भी, उसमें जो 100% पेनल्टी लगाई थी उसमें एक प्रोविजन और डाल दिया इस बारी, अगर ऐसी पेनल्टी लगानी है 271AA में एंड द क्वांटम इज 2 crores और मोर,
उस केस में प्रोविजनल अटैचमेंट की पावर ए को दे दी गई है। अभी तक ये पावर सिर्फ असेसमेंट के लिए होती थी, पेनल्टी में प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं थी। इस बारी इस बजट में 281B में अमेंडमेंट करके 271AA को भी उसमें कवर कर लिया गया। सो दिस इज द ओनली चेंज दैट इज बीन मेड इन दिस ईयर्स बजट रिगार्डिंग पेनल्टी। 270A की पेनल्टी, अब जो हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें 270A की पेनल्टी इनिशिएट करी गई है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज 270A। ऑल्दो दिस इज द न्यू, नॉट ए न्यू प्रोविजन दिस ईयर, बट इंप्लीमेंटेशन में इस साल के असेसमेंट ऑर्डर्स में ये पेनल्टी मिल रही है, इसलिए वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 270A। देखिए, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 17। तो 17-18 में भी आई थी, 18-19 में भी यही पेनल्टी प्रोविजन लग रहा है। दिस पेनल्टी हैज सब्स्टिट्यूटेड 271(1)(c, जो हमारी कंसीलमेंट की पेनल्टी पहले होती थी। 271(c) में दो किस्म की ऑफेंस माना जाता था, दो किस्म की चीजें थी, आइदर इट वाज कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स। अब 271(1)(c बिल्कुल हटा दिया गया। नाउ 270A हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें दो चीजें डील करते हैं हम। वेयरएवर देयर इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, व्हाट इज अंडर रिपोर्टिंग वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, वी विल कम टू दैट, व्हाट इज अंडर रिपोर्टिंग। एंड सेकेंडली, इफ द अंडर रिपोर्टिंग इज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो फिर पेनल्टी बहुत ज्यादा है। व्हाट आर दीज केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, वो भी सबसेक्शन 9 में पूरा डिफाइन करा गया है, वी विल कम टू दोज आल्सो। तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज अंडर रिपोर्टिंग एंड व्हाट इज मिस रिपोर्टिंग। तीसरी चीज इसमें ये भी है, दे हैव गिवन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, वेयर देयर बी नो, देयर उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें 270A नए सेक्शन में डाला गया है। 270A की पेनल्टी लगा कौन कौन सकते हैं? It can be imposed by the assessing officer during the assessment proceedings. It can be imposed by the commissioner or the principal commissioner in respect of additions made by them. अगर 263 का कोई ऑर्डर करा जिसमें कमिश्नर ने या प्रिंसिपल कमिश्नर ने आपकी इनकम को एनहांस कर दिया, तो उस केस में भी ये दोनों आदमी पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर कमिश्नर अपील्स के पास आपकी अपील पेंडिंग है and instead of giving a relief, he enhances the income. Commissioner appeal के पास हम जब जाते हैं तो entire order is open before him, so he can grant you relief, he may decline to grant a relief, and he may also enhance the assessment. अगर कमिश्नर अपील्स ने आपकी एनहांसमेंट करी तो जितना पोर्शन एनहांसमेंट का है उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो कमिश्नर अपील्स लगा सकता है। यानी जो भी अथॉरिटी इनकम असेस करेगी या इनकम एनहांस करेगी, दैट अथॉरिटी विल बी एबल टू इंपोज द पेनल्टी। अब बात करते हैं सेक्शन 278(2) और 3 की। 278(2) ने सारे सर्कमस्टांसेस इन्यूमरेट करे हैं एज टू what will constitute under reporting of income, और सबसेक्शन 3 ने बताया है कि what will be the quantum of the unreported income। तो ये दोनों सेक्शंस को मैंने साथ साथ प्रेजेंट करा है कि हम अंडर रिपोर्टेड इनकम कब मानेंगे और उसकी क्वांटम क्या होगा। पहला केस है where the income assessed is greater than the income determined in the return processed under 143(1)(a। यानी 143(1)(a) में अगर आपकी कोई एडिशन होती है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ये फॉर्चुनेट है कि अगर मेरी एडिशन 143(1)(a) में ही हो जाए तो उसके ऊपर पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि मान लो ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करा गया दैट पीएफ हैज बीन डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, तो उसकी डिसअलाउंस बन गई सेक्शन 36(1)(b) में, उसकी क्लैरिफिकेशन भी इस बजट में दे दी। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको एडिशन दिखाया, आफ्टर ड्यू डेट दिखाया पेमेंट, बट यू डिड नॉट शो दैट इन द रिटर्न,
तो जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेसिंग में ये एडिशन वो कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो ये अगर आपकी एडिशन हुई है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। So whatever additions are made in 141A, no penalty on that. अगर 141A के बाद आपकी असेसमेंट होती है रेगुलर असेसमेंट एंड द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमिन्ड अंडर 141, आपने रिटर्न फाइल करी 5 लाख रुपए की, 143A1 में हो गई आपकी 5,80,000, कोई पेनल्टी नहीं। 143 में असेसमेंट हुई आपकी 7 लाख रुपए पर, तो पेनल्टी कितने अमाउंट पर लगेगी? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड एंड द अमाउंट ऑफ इनकम डिटरमिन्ड अंडर 141। तो 7 लाख माइनस 5,80,000, 1,20,000 के ऊपर आपकी पेनल्टी लगेगी। दैट विल बी द अंडर रिपोर्टेड। तो जो भी आपकी असेसमेंट होगी माइनस इनकम डिटरमिन्ड अंडर 141A, दैट इज द अंडर रिपोर्टेड इनकम व्हिच विल बी लायबल टू पेनल्टी। दूसरा केस कहते हैं where no return of income has been furnished and the income assessed is greater than the maximum amount not chargeable to tax. अगर एसएससी ने रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो नेचुरली 141A भी नहीं होगा। अगर उसकी इनकम अल्टीमेटली जो असेस्ड है दैट इज बिलो 2,50,000, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर इनकम असेस्ड इज लेट अस से 7 लाख रुपीस, देन देयर विल बी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर वो फर्म कंपनी का केस है जहां पर कोई एग्जेम्पशन लिमिट ही नहीं है, तो जितने भी इनकम असेस हुई है दैट एंटायर अमाउंट इज योर अंडर रिपोर्टेड इनकम, क्योंकि वहां तो कोई एग्जेम्पशन लिमिट थी नहीं। दूसरे केसेस में, इंडिविजुअल वगैरह के केस में, एचयूएफ के केस में, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड एंड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी आपकी इनकम अगर 7 लाख असेस हुई तो 7 लाख माइनस 2.5 लाख विल बी योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये तो सेकंड केस हुआ वेयर assessee has not filed any return of income. तीसरा केस, the income reassessed, reassessment कब होती है? 147, 148 में income escaping assessment. If the income reassessed is greater than the income assessed or reassessed immediately before such assessment, आपकी 143 में असेसमेंट हो गई 8 लाख रुपए पर, फिर रीअसेसमेंट हुई लेट से 12 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए के रिलेटिंग जो पेनल्टी थी वो तो पहले लग चुकी होगी। अब रीअसेसमेंट में आपकी 4 लाख रुपए की एडिशन हो गई, तो दैट 4 लाख रुपीज विल बिकम योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब ये कहता है व्हाट इज द अमाउंट अंडर रिपोर्टेड इनकम? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम रीअसेस्ड एंड द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड। अगर एक बार 147 हो गया और उसके बाद दोबारा 147 हुआ, 147 कई बार हो सकता है, तो जो पहले रीअसेस्ड इनकम थी, सेकंड रीअसेसमेंट में जितनी एडिशन हुई दैट विल बी द अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक है, तो प्रीसीडिंग ऑर्डर को इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है इसमें, मींस एन ऑर्डर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हिच पेनल्टी अंडर 270A हैज बीन इनिशिएटेड। तो उससे पहले जो भी ऑर्डर हुआ था उसकी इनकम में उसकी इनकम को माइनस कर देंगे फ्रॉम द इनकम नाउ बीइंग असेस्ड। इसके ऊपर कुछ मैंने इलस्ट्रेशंस भी दी हुई हैं, वो आगे जाकर भी क्लैरिफाई कर देंगे। फोर्थ केस, ये मैट की बात करता है, where the amount of deemed total income assessed or reassessed as per provisions of 115JB or 115JC is greater than the deemed total income in the return process under 141A। अगर मैट में आप कवर्ड है और मैट की आपकी इनकम बढ़ जाती है, या एएमटी में कवर्ड है, एएमटी की इनकम बढ़ जाती है, तो देन ऑल्सो पेनल्टी इज इम्पोजेबल। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है A-B प्लस C-D, इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे आगे जाके, बट ये सिर्फ मैट प्रोविजंस पे लगता है। A is the total income assessed as per provisions of other than the provisions of 115JB, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस की इनकम क्या है, माइनस the income that would have been chargeable had the total income assessed as per general provisions been reduced by the amount of underreported income। तो इसके बेसिस पर ये A-B इसको इलस्ट्रेशन से क्लियर कर लेंगे, ऐसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, बट A-B प्लस C-D इसको हम अंडर रिपोर्टेड इनकम मानते हैं। और
एक केस और दिया वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड, अगर रिटर्न की इनकम ही नहीं फर्निश करी बट मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, एएमटी एप्लीकेबल हो जाता है और वो मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है, तो फिर भी इनकम वैसे ही करेंगे ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये भी उसी से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ डीम्ड टोटल इनकम रीअसेस्ड, अगर ये रीअसेसमेंट होती है 147 148 में और आपका मैट की इनकम या एएमटी की इनकम बढ़ जाती है तो भी वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था। एक केस और इसमें है where the income assessed or reassessed has the effect of reducing the loss or converting such loss into income। अगर मैंने लॉस की रिटर्न फाइल करी, मान लो मैंने 80 लाख रुपए रिटर्न की लॉस फाइल करी, कुछ मेरी एडिशंस हो गई एंड माय लॉस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30 लाख, यानी 50 लाख की एडिशंस हो गई, लॉस फिर भी लॉस ही रहा, देयर इज नो इनकम, देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी, बट स्टिल आई विल हैव टू पे द पेनल्टी। अंडर रिपोर्टेड इनकम शैल बी द डिफरेंस बिटवीन लॉस क्लेम्ड एंड द इनकम और लॉस असेस्ड। 80 लाख मैंने क्लेम करा था, 30 लाख रह गया लॉस, तो 50 लाख रुपए विल बिकम दी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगर मैंने 80 लाख लॉस दिखाया और असेसमेंट मेरी मान लो कि 20 लाख इनकम पर हो गई, सो देन माय अंडर रिपोर्टेड इनकम विल बी 1 करोड़। ठीक है, 80 लाख का लॉस प्लस द इनकम, वो सारा मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम मान लेंगे। ये जो 270A(4) की बात हमने करी थी, अभी जो हम बात कर रहे थे लॉस की, इसके ऊपर ये प्रोविजन कहता है 270A(4) का, देखिए अगर आपके पिछले सालों में कुछ इनटेंजिबल एडिशंस हुई हैं जिसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई, ठीक है, मान लो आपके कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए, एडॉक बेसिस पे कर देते हैं 10% 20% एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए, उसमें पेनल्टी नहीं लगी, अगले सालों में आप उस इनकम का बेनिफिट लेते हैं। आपके पिछले सालों में किसी साल में 50 लाख के एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुए, कभी 20 लाख के हुए, कभी 50, फिर 50 लाख के हो गए, नाउ देयर इज सम अनडिस्क्लोज्ड एसेट व्हिच इज फाउंड। आप कहते हैं कि सर मेरी ये एसेट जो है मैंने उन्हीं एक्सपेंसेस में से करा था वो एक्सपेंसेस जो आपने डिसअलाउ करे थे दैट वाज एक्चुअली माय इनकम, तो वो इनकम मैंने यूटिलाइज करके इस एसेट को लिया है, या दिस इज माय सोर्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। तो कोर्स ने कहा ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन दैट कि आपके पिछले सालों की जो एडिशंस थी दैट इज आल्सो इनकम। बट अब इसका क्वेश्चन आया कि क्या उस पर पेनल्टी लगी थी? पहले पेनल्टी इसलिए नहीं लगी कि वो इंटेंजिबल एडिशंस थे। अब जब आप उसको बेनिफिट लेना चाहेंगे, 270A(4) कहता है दिस विल नाउ बी डीम्ड टू बी योर अनडिस्क्लोज्ड, तो इसको अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जिन सालों में एडिशंस हुई थी उन सालों में पेनल्टी लगा देंगे, गोइंग बैकवर्ड्स। पहले जितनी आप क्लेम कर रहे हैं बेनिफिट, सबसे प्रीसीडिंग ईयर, उससे प्रीसीडिंग, उससे प्रीसीडिंग, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर मेरे पास 50 लाख 60 लाख 70 लाख की पिछले साल की डिसअलाउंस है और इस साल में मैं कहता हूं मेरे 2 करोड़ की अनएक्सप्लेन्ड इनकम है व्हिच आई एक्सप्लेन थ्रू दोज एडिशंस, फर्स्ट गो टू द प्रीसीडिंग ईयर, उसमें जितनी एडिशंस बन जाती है उसमें पेनल्टी लगेगी, उसके बाद उससे पिछले साल की कर ली है उसमें पेनल्टी लगेगी, एंड सो ऑन गो ऑन बैकवर्ड्स। ये जो 270A(4) और 270A(5) मैंने बताया था आपको, 270A(5) में कहता है the amount referred to 270A(4) shall be deemed to be the amount of income underreported for the preceding year in the following order। वो ऑर्डर बताते हैं किस साल में जाएंगे, immediately before the year of the receipt, and उस साल का अगर सफिशिएंट नहीं होता, मेरी एडिशन उससे भी ज्यादा है, then go through the subsequent preceding year, ठीक है, year immediately preceding the previous year। तो इस तरीके से बैकवर्ड जाएंगे। ये क्लॉज 6 में इन्होंने बताया कि अंडर रिपोर्टेड इनकम शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी अगर एडिशंस इन काउंट्स पे हुई है तो उसके बेसिस पर आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। व्हाट आर दीज केसेस? Where the assessee offers an explanation
and the income tax authority is satisfied that the explanation is bona fide and all material facts have been disclosed. तो अगर ये तीन चीजें मैं कह देता हूं, if I offer an explanation मेरी bona fide है and material facts have been disclosed, even though addition is made to my income, but still there will be no penalty imposable because there is no underreporting of the income. अब मान लो कोई डिस्प्यूट है मेरा कि whether an expenditure is revenue nature or it is capital in nature. मैंने एक्सपेंडिचर तो क्लेम करा है, आई क्लेम दैट दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट कहता है नहीं ये तो कैपिटल, ये तो रेवेन्यू नहीं है, दिस इज कैपिटल इन नेचर, तो वो मेरे को एडिशन कर देते हैं, दे डू नॉट अलाउ दैट एक्सपेंडिचर, सेक्शन 37 में वो एडिशन कर दी। नाउ आई हैव नॉट कंसील्ड एनीथिंग, मैंने तो पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है, आई हैव गिवन माय लॉजिक व्हाई आई ट्रीटेड दिस एज रेवेन्यू, और मेरी एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड भी है ऑल्दो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उस केस में मटेरियल फैक्ट्स मैंने डिस्क्लोज कर दिए, तो इस केस में मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानी जाएगी इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग एन एडिशन टू द रिटर्न इनकम। सेकंड केस where such underreported income is determined on the basis of an estimate if the accounts are correct and complete, but the method employed is such that income cannot properly be deduced. अब मैंने अपने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स ठीक भी हैं, बट देयर इज सम फ्लॉ इन माय मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बेस पर उन्होंने मेरे चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर दी और एस्टिमेट बेसिस पर मेरी इनकम बना दी। तो उस केस में भी मेरे को कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा दैट देयर इज अंडर any under reporting of income, provided I have maintained my accounts are complete, then if additions are made they will not be subject to any penalty. तीसरा केस where the assessee has on his own estimated a lower amount of addition or disallowance on the issue and has included such amount in the computation of income and disclosed all the facts material to the addition. अब मैंने कुछ एक्सपेंसेस इनकर करे, आउट ऑफ दोज एक्सपेंसेस आई फील 10% आर पर्सनल इन नेचर, मैंने 10% डिसअलाउंस कर दिया। असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं सर 10% नहीं, इट इज शुड बी एटलीस्ट 25%, तो उसने 25% की एडिशन कर दी। अब दिस इज अगेन एन एस्टिमेटेड एडिशन, आई हैव एस्टिमेटेड 10%, उसने एस्टिमेट कर दिया 25% पर, सो उसके ऊपर भी पेनल्टी नहीं लगेगी if it is purely on estimated basis. I have myself disallowed something on my estimate, that estimate may be wrong, someone estimates it at a higher figure, so there is no underreporting of income in that case. Fourth case, where the assessee had maintained information and documents as prescribed under section 92D, he has declared the international transaction and disclosed all the material facts. Now regarding international transactions, you know that section 92D prescribes that you have to maintain certain documents. आपको सारे contemporary records रखने हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, उसको रिपोर्ट करना है, उसकी ऑडिट भी रिपोर्ट भी आपने फाइल करनी है, तो ये सारी चीजें आपने कर दी, you have maintained proper records, but still the assessing officer does not agree to your transfer pricing, वो ट्रांसफर प्राइसिंग की कुछ एडिशन हो जाती है। If you have maintained proper records, you have declared the international transaction and have disclosed the material facts, then it will not be a case of underreporting of your income. Penalty नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में भी जो भी प्राइसिंग आप करेंगे that is also based on various estimates. तो अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो उसके ऊपर पेनल्टी से आप बच सकते हैं। और अगर आपके केस में कोई सर्च हुई है, जो फिफ्थ केस कहता है where the undisclosed income is on account of a search operation and penalty is leviable under section 271AA(b), then this provision will not be attracted। 271AA(b) को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस साल के बजट में सर्च की असेसमेंट्स के ऊपर फिर मॉडिफाई कर दिया। अब सर्च असेसमेंट्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सो मेनी चेंजेस। सबसे पहले एक इन्होंने कंसेप्ट निकाला था ब्लॉक असेसमेंट का, 115 BD वगैरह करते थे, फिर वो खत्म करके इन्होंने कुछ साल पहले
153A 153C इंट्रोड्यूस करा, जिसमें कि 6 साल की आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी, एंड असेसमेंट वाज मेड फॉर द लास्ट 6 years. 153C भी इंट्रोड्यूस करा था इन रिस्पेक्ट ऑफ person who is not searched but whose documents, assets etc. are found in the course of search. अब वो दोनों सेक्शंस को अगले साल से उसको भी डिलीट कर दिया, यानी असेसमेंट्स ऑफ सर्च केसेस विल नो लॉन्गर बी अंडर 150A 150C. अब उसके लिए भी 148 का प्रोविजन ही लगा दिया that this will be deemed to that income has escaped assessment, और 148 में ही उसको कवर कर दिया. तो अब 3 साल के असेसमेंट्स खोल सकते हैं in such cases also, and they can go beyond 3 years if the income represented by an asset for each year is more than rupees 50 lakhs. तो अगर 50 लाख से ऊपर के एसेट्स हैं, अनडिस्क्लोज्ड हैं, फाउंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्च, तो वो 10 साल तक पीछे जा सकते हैं. ये सर्च की प्रोसीजर तो चेंज कर दिया सर्च असेसमेंट्स का, बट पेनल्टी जो है वो अभी भी 271AA में ही लगेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है. यानी अगर 148 में आपकी असेसमेंट होगी pursuant to a search, penalty will still be applicable under 271AA. 271AA अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे. पेनल्टी कितनी लगेगी ये 270A7 और 8 में बताया है. Penalty is 50% of the tax payable in case of underreported income, and it will become 200% of the tax payable if the underreported income is on account of misreporting of income. तो अगर misreporting के केस में आप आ जाते हैं, then the penalty is 200% of the tax, नहीं तो 50%. पहले 271(1)(c) में प्रोविजन क्या कहते थे? पेनल्टी कुड बी मिनिमम 100%, मैक्सिमम 300%. So there was a discretion with the assessing officer, वो 100 से लेके 300% तक कुछ भी पेनल्टी लगा सकता था. But now penalty is fixed amount. अंडर रिपोर्टिंग में 50%, मिस रिपोर्टिंग में 200%, नो डिस्क्रिशन, नो इफ्स एंड बट्स, नो लेस और मोर पेनल्टी. तो दोनों रेट्स प्रिस्क्राइब हैं. अब इसके बाद आते हैं व्हाट आर केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जहां पर 200% टैक्स लगेगा. ये 270A9 ने बताया कि व्हाट इज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. वो कहते हैं वेयरएवर देयर इज सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने अपनी सेल पूरी नहीं बताई तो वो सप्रेशन हो गया, तो उस केस में मिस रिपोर्टिंग आ जाएगी. Wherever there is a failure to record investments in the books of account, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, आपने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया, उसको बुक्स में दिखाया ही नहीं, उसकी पेमेंट आपने कैश में कर दी, नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अगर पकड़ में आ जाता है, to be a case of misreporting of income, penalty will be 200%. Failure to record any receipts in the books of account having a bearing on the total income. आपके पास कुछ पैसा आया, आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, so that will again be a case of misreporting. Claim of any expenditure which is not substantiated by any evidence, आपने bogus expenses बुक कर दिए, you don't have any bills for that, कोई आपने पेमेंट चेक से नहीं करी, there is no evidence to substantiate that expenditure, so that will again be a case of misreporting. Recording of any false entry in the books of account. The false entry could be on so many accounts. आपने एक फर्जी बिल ले लिया, फेक बिल्स हैं, आपने अपने कोई भी एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर लिया, so that is recording of a false entry. उसकी भी पेनल्टी मिस रिपोर्टिंग में 200% लग जाएगी. अब इसमें मैंने एक नोट दिया साथ में कि इस केस में 271AA जो लास्ट ईयर नई पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी थी वो भी लग सकती है, जो कि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अगर 271AA में पेनल्टी लग गई तो यहां नहीं लगेगी, और ना ही 271AA में लिखा है कि अगर 270A में पेनल्टी लग गई तो वहां नहीं लगेगी. यानी ये दोनों पेनल्टीज साथ साथ भी लग सकती हैं. अगर आपकी एडिशन हो गई टू योर रिटर्न इनकम तो यहां पर भी पेनल्टी लगेगी 200%, और अगर ये प्रूव हो गया कि आपकी फॉल्स बिल्स हैं, फॉल्स एंट्रीज हैं,
टू 271AA में भी 100% पेनल्टी लग जाएगी, यानी 200% इधर 100% उधर, और 100% वहां पर दूसरे आदमी के ऊपर भी लग सकती है जिसने आपको हेल्प करा हो वो एंट्री डालने में, यानी 400% पेनल्टी प्लस ऑफ कोर्स यू आर सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, वो चीजें अलग है। वो जीएसटी में क्या पेनल्टी लगेगी, जीएसटी में क्या उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, वो अशोक जी अलग से बता देंगे। बट यहां पर इनकम टैक्स में 200% पेनल्टी यहां लगेगी, 100% पेनल्टी 271AA में लगेगी इफ देयर इज एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स। If there is any failure to report an international transaction or transaction deemed to be an international transaction or specific domestic transaction, then also it is misreported. आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी, you have not even reported that. आपने रिपोर्ट करी, आपने उसका ऑडिट कराया, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे, तो फिर तो आपका केस आएगा अंडर रिपोर्टिंग, तब तो 50% पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने रिपोर्ट ही नहीं करी कोई भी ट्रांजैक्शन, तो फिर आपकी पेनल्टी लगेगी 200% की, इट विल बी केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग। तो ये सारे केसेस स्पेसिफाई करें हैं 278(9) में, वेयर इट इज डीम्ड टू बी अ केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब ये टैक्स पेएबल कैसे कंप्यूट करते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए, ये बताया हुआ नो रिटर्न हैव बीन फर्निश्ड, वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसमें अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए तो हम जैसे उसमें से माइनस कर देती है अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स। अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी, आपकी इनकम असेस होगी 7 लाख में से, अंडर रिपोर्टेड इनकम है 7 लाख माइनस 250, और जब पेनल्टी कंप्यूट करूंगा तो अंडर रिपोर्टेड इनकम में वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स को फिर ऐड कर दूंगा, यानी टैक्स कंप्यूट करते वक्त 7 लाख में कंप्यूट करूंगा और पेनल्टी विल बी 50% और 200% ऑफ दैट। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा पेनल्टी अमाउंट कितना बनेगा। अगर एक आदमी की हम देखें कि जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी और उसकी इनकम असेस हो गई 10 लाख रुपए, तो अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी 10 लाख माइनस 250, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम तो होगी 750, पर जब टैक्स कंप्यूट करूंगा तो फिर इसको 2,50,000 को ऐड कर लूंगा। अगर यहां पर ऐड नहीं करूंगा तो देन आई विल बी गिविंग अ डबल बेनिफिट, तो 7.5 लाख रुपए टैक्स कंप्यूट करूंगा तो कम आएगा, तो आई कंप्यूट द टैक्स एट 10 लाख रुपीस, वो आएगा 1,12,500 प्लस 4% सेस, तो 1,17,000 बन गया। अगर मेरा केस अंडर रिपोर्टिंग में आता है तो 58,500, अगर मिस रिपोर्टिंग में आता है तो 200%, उसका हो जाएगा 2,04,000। So this is how I will compute the penalty if no return of income has been filed. दूसरा केस है where the total income determined under section 153(a)(1)(a) or assessed, reassessed or recomputed in a preceding year is a loss. अगर मेरी लॉस में असेसमेंट होती है तो क्या होगा? The amount of tax calculated on the under-reported income as if it were the total income. तो जैसे मैं बताया ना कि 80 लाख का लॉस बताया, 40 लाख का रह गया असेसमेंट के बाद, तो 40 लाख will be the amount of under-reported income. ये एक एग्जांपल देखें इसमें, my returned loss was 100 lakhs, ये कंपनी का केस ले रहे हैं, 100 lakhs का लॉस था और लॉस डिटरमिन हुआ मेरा 90 lakhs का 143(1)(a) में, यानी 10 लाख रुपए का मेरा लॉस डिसअलाउ हो गया बिकॉज ऑफ सम एडिशंस, और 143(3) के असेसमेंट में मेरा ये लॉस सिर्फ 40 लाख का रह गया, ठीक है ना, यानी 50 लाख से और रिड्यूस हो गया लॉस, कुछ और एडिशन हो गई, और फिर मेरी रीअसेसमेंट हुई 147 में, अब मेरी इनकम बन गई 20 लाख रुपए। तो पेनल्टी किस किस स्टेज पे लगेगी? जो फर्स्ट केस है जहां पर मेरी 141(a) में इनकम असेस हुई, वहां पर कोई पेनल्टी नहीं। तो जो पहली एडिशन हुई थी 10 लाख रुपए की, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी पेनल्टी। जब 143 में असेसमेंट हुई और 40 लाख रुपए का मेरा लॉस रह गया, तब मुझे पेनल्टी लगेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर जब रीअसेसमेंट हुई, मेरा 40 लाख का लॉस भी कन्वर्ट हो गया इनकम पे 20 लाख की, देन ऑल्सो दिस विल बी अ सेकंड पेनल्टी। तो इसमें 2 टाइम पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी कैसे कंप्यूट करेंगे? जब 143 में असेसमेंट हुई तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी
मेरा लॉस असेस हुआ 40 लाख का, मेरा रह गया था 141 में 90 लाख का, यानी 50 लाख रुपए की मेरी एडिशन। So tax on 50 lakh rupees will be 15 lakhs. कंपनी का केस मान रहे 30% टैक्स है। पेनल्टी लेविएबल 50% अगर अंडर रिपोर्टिंग होगी तो 7.5 लाख रुपए, और अगर 200% पेनल्टी लगेगी तो 30 लाख रुपए। तो जब 143 की असेसमेंट होगी उस वक्त मेरे ऊपर 7.5 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। दिस विल बी फर्स्ट स्टेज जहां पर पेनल्टी लगी। अब जब रीअसेसमेंट होगी और मेरा 20 लाख का लॉस जो बचा हुआ था, वो 40 लाख का लॉस था, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इनकम ऑफ 20 लाख। तो मेरी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो गई अब? 60 लाख रुपए की। तो अब 60 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, टैक्स बनेगा 18 लाख का, 50% पेनल्टी लगी तो 9 लाख की, और 200% पेनल्टी लगी तो 36 लाख रुपए। तो ये दो स्टेजेस में मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, 143 के असेसमेंट पे, 147 के असेसमेंट। अंडर रिपोर्टेड इनकम पे कितना लगेगा? कोई भी केस में डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला x माइनस y। x क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इंक्रीज बाय द टोटल इनकम डिटरमिन्ड इन 143 वाले, और टोटल इनकम असेस्ड रीअसेस्ड। वही सारा फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से ये फॉर्मूला के बेस पे कर ले, या x माइनस y वही चीज आपकी आएगी इसमें। एक केस और देख ले, फर्म का केस है, रिटर्न इनकम वाज 1 करोड़, 141A में 1 करोड़ 10 लाख कर दिया, 143 में 1.5 लाख, और 147 में ये इनकम होगी 180। तो पहली पेनल्टी कब लगेगी? 143 में। उस टाइम पे कितने अमाउंट पे पेनल्टी लगेगी? 40 लाख पर। और फिर 147 का हुआ, अब एडिशन कितनी हुई? 30 लाख की। तो सेकेंड स्टेज में फिर पेनल्टी लगेगी 30 लाख रुपए पर। तो ये कैलकुलेशन आ गई। पहले केस में 40 लाख पर पेनल्टी लगी, तो नहीं 1.5 करोड़ पर, 1.5 करोड़ माइनस 40 लाख पे, टैक्स ऑन 1.5 करोड़ पे 45 लाख, टैक्स ऑन 1 करोड़, मतलब वही आएगा। डिफरेंस जो है वो 12 लाख रुपए का आ जाएगा। 4 लाख में डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा, वो भी 12 लाख ही आएगा। तो पेनल्टी होगी 50% 6 लाख, 200% लगेगी तो 24 लाख। दूसरे केस में 147 में 1 करोड़ 80 लाख पे असेसमेंट हुई, उससे पहले असेसमेंट मेरी 1.5 लाख पे, 1.5 करोड़ पे हो चुकी थी, तो एडिशन इज 30 लाख। तो 30 लाख पे 30% अगर मैं लगाऊंगा तो वही मेरा 45 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। इसमें 9 लाख रुपए अगर टैक्स पेएबल इन ऑफ 9 लाख रुपए का बनेगा, तो 9 लाख रुपए पे 50% 4.5 लाख पे 200% लगाएंगे तो 18 लाख रुपए। यानी हर स्टेज पे जो एडिशन होगी उस पे, हर स्टेज पे पेनल्टी मुझे अलग से देनी पड़ेगी, जितनी एडिशन उस स्टेज पे होगी। 141A से 143 पे, 143 से 147 पे। मान लो दोबारा 147 हो जाए और फिर इनकम बढ़ जाए तो दोबारा पेनल्टी लगेगी। तो एट एवरी स्टेज देयर बी अ पेनल्टी लेविएबल। अब लास्ट में ये बताते हैं कि पेनल्टी कब नहीं लगेगी। वो कहते हैं नो एडिशन और डिसअलाउंस ऑफ एन अमाउंट शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी इफ such addition or disallowance has formed the basis of imposition of penalty in the case of the person for the same or any other assessment। यानी वही एडिशन अगर पहले ही हो चुकी है या 153 में हो चुकी है, 147 में भी उसको दोबारा एडिशन कर दी, उसके ऊपर पहले पेनल्टी लग चुकी है, दोबारा नहीं लगी। 147 में जब असेसमेंट करते हैं तो वो नॉर्मली जो पहले एडिशन हुई है वो भी दोबारा कर लेते हैं, बट देन जब टैक्स का बेनिफिट देंगे तो टैक्स भी पहले चार्ज हो चुका है, इसी तरीके से पेनल्टी भी पहले लग चुकी है, सो अगेन पेनल्टी विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन दैट एडिशन। दूसरा मैंने आपको बताया सर्च केसेस में अब पेनल्टी लगेगी 271AA में, जो सर्च 2012 से बाद में हुई है 1A में लगती है पेनल्टी, उस केस में भी 270A में पेनल्टी नहीं लगेगी। एक और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें डाला गया वो है 270AA। 270AA कुछ केसेस में मुझे इम्यूनिटी दे सकता है। ये दो कंडीशंस मुझे सेटिस्फाई करनी है।
If I satisfy those conditions, I can apply for immunity from penalty. अगर मेरी असेसमेंट 143 में हुई या 147 में हुई और कोई नोटिस मुझे इशू करा गया पेनल्टी के लिए, then if I do not file an appeal against that order within the prescribed time, 30 days में मैं अपील नहीं फाइल करता, and I pay the tax within the time prescribed under the notice of demand, यानी 30 दिन के अंदर मैं टैक्स पे कर देता हूं और मैं कोई अपील नहीं फाइल करता, then I am eligible to claim immunity from the penalty. ठीक है ना? यही चीजें इसमें लिखी हैं. Shall subject to fulfillment of the conditions after the expiry of period of filing appeal grant immunity from imposition of penalty under 270A and initiation of proceedings under 276C. यानी जब मेरे को पेनल्टी में लगेगी तो मेरे को प्रोसिक्यूशन से भी इम्यूनिटी मिल जाएगी. अब ये इसमें कंडीशन एक है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ पेनल्टी शुड नॉट बी अंडर 278(9). 278(9) किसकी बात करता है? मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. तो मिस रिपोर्टिंग में अगर कवर नहीं होता, इट इज ओनली अ केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, देन ओनली आई कैन अवेल ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ इम्यूनिटी. यानी छोटे मोटे एडिशंस हमारे कई सारे केसेस में हो जाती हैं. अभी भी जो हमारे फेसलेस असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें बहुत केसेस में छोटे मोटे एडिशन हो जाती हैं. सो देन इट इज बेटर फॉर द एसएससी टू ऑप्ट फॉर दिस इम्यूनिटी. टैक्स पे कर दे, अपील नहीं फाइल करे, एंड ऑफ लिटिगेशन एंड नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड. इसका फॉर्म एक प्रिस्क्राइब्ड है मेरे का 58 फॉर्म में, 68 फॉर्म में. आपको ये फॉर्म 68 है, ये आपको फिल करके, एक छोटा सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म. इफ यू फिल इन दिस फॉर्म within 1 month from the end of the month in which the order has been received, then you can seek the immunity from the penalty. और पेनल्टी की इम्यूनिटी मिलेगी तो प्रोसिक्यूशन से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. अब 1 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर विल पास एन ऑर्डर आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन. अगर आपका केस अंडर रिपोर्टिंग में आता तो ही विल ऑलवेज एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. अगर उसकी कंटेंशन है दैट इट इज अ केस फॉर सप्रेशन ऑफ इनकम, तो फिर उस केस में वो आपको इम्यूनिटी नहीं देगा. अब वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे, देन ये ऑर्डर आपका अपीलेबल नहीं है. बट इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट योर पिटिशन फॉर इम्यूनिटी, देन यू हैव अ राइट टू फाइल एन अपील बिफोर द सीआईटी अपील्स. तो आपका इम्यूनिटी का ऑर्डर जो है अगर वो नहीं एक्सेप्ट होता, देन यू हैव द रिकोर्स टू फाइल एन अपील टू द सीआईटी अपील. ये लिखा हुआ है. एंड इफ यू सीक इम्यूनिटी, अगर आपको एडिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव एक्सेप्टेड द एडिशन फॉर अदर इयर्स आल्सो. तो अगर उसी इशू के ऊपर पिछले सालों में भी एडिशन है, यू आर ऑलरेडी इन अपील अगेंस्ट दैट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट अपील. ये तो सिर्फ एक कन्वीनियंस सेक के लिए आपने इस साल में इम्यूनिटी मांगी. You did not want to contest it, maybe because the quantum was less, तो आपने उसके लिए immunity मांगी. So you can still go on contesting for the other years. उसके लिए कोई adverse view आपके against नहीं होगा. So that was regarding the new penalty under 270A and the immunity from that penalty under 270AA. अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक वी कैन टेक अप दोस क्वेश्चंस एट दिस स्टेज बिफोर आई प्रोसीड टू अदर पेनल्टीज. सर, जो अभी असेसमेंट ऑर्डर आ रहे हैं उसकी उनमें इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी लिखा हुआ नहीं आ रहा साथ में. अगर पेनल्टी इनिशिएट नहीं करी तो फिर तो हो ही नहीं सकती. सर फिर नहीं होगी ना उसके अंदर, जिनमें अगर ऑर्डर में मेंशन नहीं है तो पेनल्टी ना. अगर पेनल्टी उन्होंने इसमें इनिशिएट नहीं करी तो फिर पेनल्टी नहीं होगी. ठीक है. वो तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर ही दे हैव टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग. So, 2 क्वेश्चंस आए हैं. सुशील डालमिया जी पूछ रहे हैं, द पेनल्टी अंडर सेक्शन 271AA(D) is on the value of transaction as against the amount of tax under 270A. Kindly confirm. 271AA(D) की पेनल्टी भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं. I will cover 271A(D) or D also. And he also wanted some more examples for clarification under section 270A(8) and under section subsection 9.
देखिए, I can go back to that slide on 278.9. देखिए, these are the cases जहां पर हम इसको कहते हैं this is misreporting of income. देखिए, जहां पर basically intention of the assessee is not to disclose an income. एक तो होता है कि मेरे से कुछ इंटरप्रिटेशन में गलती है या कुछ फैक्ट्स मेरे बताने में गलती है, सो देयर वाज नो इंटेंशन देयर, तो उसको तो हम 50% पेनल्टी में कवर करते हैं. जहां पर इंटेंशनली करा गया मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि आपने फैक्ट्स गलत बताए या आपने अपनी सेल को कंसील करा, आपने अपने एक्सपेंडिचर को कंसील करा, you have suppressed the facts, then he will take this as a case of misreporting of income. उस केस में 200% पेनल्टी लगती है. देखिए, क्वांटम उतना ही आता है, क्वांटम ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम विल बी द सेम. अब उस पर पेनल्टी का क्वांटम सिर्फ फर्क पड़ता है कि पेनल्टी 50% लगनी है या 200% लगनी है. नॉर्मली 50% लगनी चाहिए, पर अगर इन केसेस में, इन 6 केसेस में वो कवर करेगा, देन ही विल इंपोज अ पेनल्टी ऑफ 200%. तो असेसिंग ऑफिसर की कंटेंशन क्या है? दैट यू हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर वो ये प्रूव कर देता आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है और उसके एडिशन वो कर देता 69, 69A वगैरह इन्वोक कर, तो देन ही विल ऑफ कोर्स इंपोज दिस पेनल्टी. ठीक है ना? एडिशन किस सेक्शन में करिए? आप 68, 69 में एडिशन करेगा तो एक और दूसरे में आएंगे अभी हम, तो पेनल्टी उसमें 271AA में लगेगी. तो वी विल हैव टू सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, किस किस्म की एडिशन की है और कौन सा रेलेवेंट सेक्शन होगा. अब पेनल्टी अलग अलग सेक्शंस में भी लग सकती है. अगर 68, 69, 69A वगैरह में एडिशन होगी, सो देन पेनल्टी विल बी अंडर 271AA. पर अगर और कोई है इन्वेस्टमेंट्स जो आपने नहीं रिकॉर्ड करी, देन ही कैन इंपोज अ पेनल्टी ऑफ 200% हियर. आपने कोई रिसीट्स हैं जो बुक्स में नहीं अकाउंट फॉर करी एंड व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन द टोटल इनकम, देन आल्सो 200% पेनल्टी. तो ये सारे केसेस उन्होंने एन्यूमरेट करे हुए हैं व्हिच आर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है, इनकम जिसको हम कहते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम, वो तो सेम ही रहेगी. इस केस में 200% लगेगी, नॉर्मल केस में 50%. हाँ सर, एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव ऑन दिस? No, sir, we can proceed forward. ठीक है. अब मैं आई विल जस्ट टेक यू थ्रू स्मॉल पेनल्टीज आल्सो जो रेलेवेंट है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे. वी हैव अबाउट हाफ एन आवर. 271A पुरानी पेनल्टी है, फेलियर टू कीप एंड मेंटेन रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये तो पुरानी चली आ रही है कि अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन नहीं करते, द असेसिंग ऑफिसर आस्क्स मी टू प्रोड्यूस इट, मैं नहीं प्रोड्यूस करता, देन पेनल्टी इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 25,000. असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील्स दोनों में से कोई भी इसकी पेनल्टी लगा सकता है. दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ 25,000. इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं है. एक चीज और इसमें क्लैरिफाई कर लें कि एक हमारा प्रोविजन है सेक्शन 273B का. 273B कहता है in certain cases if there is a reasonable cause for not complying with the provision, penalty may not be imposed. अब 271A उसमें कवर्ड है, 270 कैपिटल A कवर्ड नहीं है. यानी 270A की जो पेनल्टी लगती है, कोई भी एडिशन अगर हुई है उसमें मैं रीजनेबल कॉज नहीं दिखा सकता. बट इस केस में अगर सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की बात है एंड आई कैन शो दैट देयर वाज रीजनेबल कॉज, देन पेनल्टी में नॉट बी इंपोज्ड. तो 273B भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वो कुछ सेक्शंस पे लगता है, कुछ पे नहीं लगता. 271A उसमें कवर्ड है, 270 कैपिटल A जो अभी हमने डिस्कस करा वो उसमें कवर्ड नहीं है. AA की पेनल्टी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं,
वो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन करेंगे, ठीक है, फेल्स टू कीप एंड मेंटेन सच इंफॉर्मेशन, फेल्स टू रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन और मेंटेन्स और फर्निश डज नॉट मेंटेन और फर्निश एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो उस केस में 271 AA की पेनल्टी लगती है. Penalty can be imposed either by the assessing officer or commissioner of appeals, which will be 2% of the value of the international transaction. तो अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कई बारी वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 2%. AA2 में भी पेनल्टी लगती है, अलग से है. इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड, आपने मेंटेन तो करे हैं but you fail to produce it before the assessing officer, then there is a penalty of 5 lakh rupees. 271AA जैसे मैं बता रहा था, this is a penalty which is imposed in search cases. 271AA(B)(1) क्लॉज जो है वो पुरानी सर्चेस के लिए है, जो सर्च 2012 से पहले कंक्लूड हो गई हो, 2016 से पहले 12 और 16 के बीच में थी. 15 दिसंबर 2016 से, जब से वो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद से जो सर्च हुई है उसमें पेनल्टी लगती है 271AA(B)(1) में. अभी ये सेक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, इवन फॉर सर्चेस व्हिच मे बी कंडक्टेड टुडे. और अगले साल में भी जो सर्च होंगी, चाहे प्रोविजन 153A 153C नहीं लगेगा, असेसमेंट्स 148 में ही होंगी, बट पेनल्टी विल बी इंपोज्ड अंडर 271AA(B)(1) अब इसमें दो रेट्स ऑफ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, 30% या 60%. 30% कब लगेगा और 60% कब लगेगा? 30% लगती है पेनल्टी फॉर द स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर. अब स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर क्या होता है? which has ended before the date of search but due date of filing the return for such year has not expired. मान लो मेरी सर्च हो जाती है 1 मई को, 1 May 2021 में या 20 में सर्च हो जाती है. So my return for the year ending March 20 had not expired. तो वो वाला साल पूरा आ जाएगा 1920 का, एंड उसके रिटर्न मैंने फाइल नहीं करी, एंड द पीरियड अप टू द डेट ऑफ सर्च. तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड प्रीवियस. तो इस साल की अगर इनकम है, यानी जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं निकली एंड आई हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, उस केस में उस पे पेनल्टी लग सकती है 30%. उसमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे पेनल्टी लगती है. अनडिस्क्लोज्ड इनकम इसमें डिफाइन करी गई है. Income of the specified previous year represented either wholly or partly by any money, bullion, jewelry, other valuable article or things found during the course of search which has not been recorded in the books before the date of search or has not been otherwise disclosed to the principal commissioner etc. before the date of search. Okay. Or any income of the specified previous year represented either wholly or partly by any entry in the respect of any expenses recorded in the books of account or the documents which is found to be false and would not have been found had the search not been conducted. यानी अगर मेरी बुक्स में कोई इनकम नहीं रिकॉर्ड करी गई या कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे हैं which are not genuine expenses, both these things will constitute undisclosed income. और ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर मेरी स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की है तो मेरी ये पेनल्टी तो पुरानी हो गई ये वाली. तो अगर मैंने उस स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर की अनडिस्क्लोज्ड इनकम को अगर मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एडमिट कर लूं, अब 132(4) की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च. 132(4) की स्टेटमेंट ओथ पे ली जाती है. If during that statement I admit this undisclosed income, I specify the manner in which I earned the income, substantiate the manner, and I pay the tax,
I should file the return and pay the tax on that income, then I will have to 30% tax. इसमें क्या क्या कंडीशंस मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ी हैं 30% के लिए? It should be income of the specified previous year. Undisclosed income है. I have admitted that undisclosed income. I have specified the manner in which I earned that income. I have filed my return for that year and pay the tax. अगर ये सारी कंडीशंस में सेटिस्फाई करता हूं, then I will have to pay penalty only of 30%. And in other cases, I will have to pay 60% of the tax as penalty. If I am not covered under the provisions of 271AA(b)(1, then I have to pay tax of 60%. यानी मैंने 134 में नहीं डिक्लेयर करी, या it is the income of not the specified previous year, उससे पिछले सालों की इनकम है, then I have no option but to pay penalty of 60%. अब जहां पर पेनल्टी 271AA(b) में लगेगी सच केसेस में, तो वहां पर 270A की पेनल्टी नहीं लगेगी, ये इसमें क्लैरिफाइड है. और 273B इज नॉट एप्लीकेबल, यानी यहां पर मैं कोई रीजनेबल कॉस्ट नहीं दिखा सकता. अगर मेरी कोई एडिशन हुई है, अनडिस्क्लोज इनकम मिली है, आई विल हैव टू पे पेनल्टी आइदर 30% और 60%. तो सच केसेस में 271AA(b) में जहां पेनल्टी लगती है, वहां 273B नहीं लगता, और ना ही 270A लगेगा. सो दिस विल बी द ओनली सेक्शन जहां पर पेनल्टी इंपोज हो. तो सच केसेस में पेनल्टी विल बी आइदर 30% और 60%. अब you will see in most of the cases now there is no discretion with the assessing officer. पेनल्टी का अमाउंट बिल्कुल फिक्स कर दिया गया. टू 271AA(c). अब ये सेक्शन भी नया आया जब डिमोनेटाइजेशन के बाद 115BBE जब लगाया सेक्शन हमने, और उसमें BBE में कहा हमने कि all these incomes which are covered under 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, अगर कोई एडिशन इन सेक्शंस में होती है, then what is the tax rate? Tax rate will be 60%, not the normal tax rate. इनमें सब में 60% टैक्स लगेगा. 60% के ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा, उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगेगा. तो दिस अमाउंट्स टू अबाउट 78% टैक्स. अब 78% अगर टैक्स ही ले लिया, तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब इसके ऊपर 200% पेनल्टी लेना जाती हो जाएगी. So when the tax rate has been increased to 78%, तो अब उन्होंने पेनल्टी का प्रोविजन 271AA(c) कर दिया, और इसमें यह कर दिया कि अब पेनल्टी इन एडिशंस के ऊपर सिर्फ 10% लगेगी. तो यानी 78% टैक्स प्लस 10% पेनल्टी विल बी 7.8% आपकी पेनल्टी लगेगी. ठीक है. और इसमें 271AA को ये ओवरराइड करता है. Penalty is 10% of the tax payable under section 115BBE. जैसे मैंने आपको बताया 78% टैक्स है. पेनल्टी लगाएगा कौन? असेसिंग ऑफिसर. और 270A इसमें फिर नहीं लगेगा, जो कि दिस इज अगेन स्पेसिफिक सेक्शंस की पेनल्टी लग रही है. 273B भी इसमें अप्लाई नहीं करता. 274, 275 जो प्रोसीजर वगैरह बताते हैं, टाइम लिमिट बताते हैं, वो ऑफ कोर्स सारे सेक्शंस पे अप्लाई करते हैं. तो जहां पर भी एडिशन मेरी 68, 69 में होगी, then the penalty will be under 271AA(c). It will be 10% of the tax payable under section 115BBE. अब जो कि एक टैक्स रेट मैंने बताया 78% का हो गया, so we could not impose 200% penalty there, so penalty is kept at only 10%. (271AA(d) ये लास्ट ईयर के बजट में आया था. दिस वाज अ वेरी ड्रैकोनियन प्रोविजन, बहुत खतरनाक प्रोविजन है. ये बेसिकली जीएसटी में फ्रॉड की वजह से ये प्रोविजन लाया गया. लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने देखा कि जब फेक बिलिंग का बहुत सारा काम चल रहा है जीएसटी में, सो बिसाइड्स मेकिंग इट अ प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अंडर जीएसटी, उन्होंने इनकम टैक्स में भी इसका प्रोविजन डाल दिया कि 100% of the penalty
फॉर फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। असेसिंग ऑफिसर लगाएगा, 273B अगेन नहीं लगेगा। इसको जरा डिटेल में देख लें। ये तो मैंने बताया जीएसटी के फ्रॉड के लिए आया, सारा फेक इनवॉइसेस के चक्कर में ये पेनल्टी लगाई गई। अब ये सेक्शन क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी और सेक्शन तो है जो रहेंगे ही रहेंगे, उनके अलावा ये सेक्शन और लग जाएगा। This section will override all other sections also. If during any proceeding under this act it is found in the books of accounts maintained by any person लिखा हुआ इसमें, there is a false entry or there is an omission of any entry which is relevant for computation of the total income of such person to evade tax liability, तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। If either there is a false entry or omission of an entry, तो दोनों केसेस को हमने इसमें कवर करा है। और ये ध्यान रखने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन, यानी नॉट नेसेसरली द एसएससी, दीज बुक्स कैन बी ऑफ एनी पर्सन। पेनल्टी किस पे लगेगी? ठीक है, पेनल्टी लग सकती है एनी अदर पर्सन हु कॉजेज द पर्सन रेफर टू 7188, यानी जिस आदमी ने आपको इंड्यूस करा ये एंट्री करने के लिए या एंट्री ओमिट करने के लिए, जिसने आपको हेल्प करा, वेट करा टू गेट फॉल्स बिलिंग, बोगस बिलिंग, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी। इन एनी मैनर टू मेक अ फॉल्स एंट्री और टू कॉज ओमिट एनी एंट्री रेफर टू 7188, तो दोनों आदमियों के ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। व्हाट इज अ फॉल्स एंट्री, ये भी इसमें एक्सप्लेन करा गया सेक्शन में ही। Forged or falsified documents such as false invoice or in general a false piece of documentary evidence. अगर आपकी इनवॉइस फेक है तो वो इसमें आ जाएगी। अगर आपके पास कोई भी चीज, आपने कोई एक्सपेंस करा और एक्सपेंस के लिए भी आपने एक बोगस बिल से एक्सपेंस बुक कर दिया तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। आपने कंफर्मेशन प्रोड्यूस करनी थी एक क्रेडिटर से, वो कंफर्मेशन भी आपने फोर्स करके दे दी तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा वो भी। कई जगह हमने देखा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर असेसी से मांगता है अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो, वो असेसी बैंक स्टेटमेंट भी अपने आप बनाकर दे दे, सो दैट विल बी आल्सो अ फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये सारे केसेस इसमें कवर हो जाएंगे। सेकेंडली वो कहता है इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशूड बाय द पर्सन और इन द पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसीट ऑफ सच गुड्स, यानी आपने बिल ले लिया सिर्फ एक्सपेंस बुक करने के लिए, एक्चुअल डिलीवरी गुड्स की आपको हुई नहीं, आपने कोई सर्विसेज के लिए फॉल्स बिल लेके बुक कर दिया, आपको वो सर्विसेज मिली ही नहीं, then also it will fall under false entry. Here, if the assessing officer can establish that you have not received the goods, or there is an invoice in respect of supply or receipt of goods or services, or both, to or from a person who does not exist. आपने बिल एक ऐसे आदमी का डाल दिया जो आदमी या कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, so then all these have been classified as a false entry. अगर ये false entry मिल जाती है आपकी बुक्स में तो पेनल्टी लगेगी 271AA में, which will be 100% of the amount covered by the false entry. ठीक है, इसको एक बार फिर देख लें। ठीक है, इसमें पेनल्टी कितनी थी? 100% of the amount of false entry। और इसमें कोई रीजनेबल कॉज वगैरह नहीं हो सकता कि मुझे पता नहीं था वो एंट्री ऑपरेटर था या कुछ था, आई वाज अ जेन्युइन परचेजर, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर ये पता चल जाए कि वो इनवॉइस जो है वो फेक है, सो देन 271AA में 100% पेनल्टी लगेगी। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर वो एडिशन आपकी इनकम में हो जाती है तो 270A में भी आपकी 200% की पेनल्टी लगेगी। तो 200% की पेनल्टी वहां लगेगी, 100% की पेनल्टी यहाँ लगेगी। 100% की पेनल्टी किस पर और लगेगी? जिस आदमी ने आपको इंड्यूस करा या जिस आदमी ने आपको ये फेक इनवॉइस दिलवाने में मदद करी, तो उसके ऊपर भी ये पेनल्टी लग जाएगी।
271B की पेनल्टी अगेन पुरानी पेनल्टी है, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। अगर आपके टैक्स ऑडिट कराना है और आपने ऑडिट नहीं कराया या करा लिया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 0.5%, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। मैक्सिमम पेनल्टी लगती है 1.5 लाख रुपए। अब इसमें भी 273B में कवर्ड है, इफ यू कैन शो दैट देयर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर नॉट गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। अब इसमें कुछ केसेस ये भी है इस किस्म के कि अगर मैंने अकाउंट्स ही नहीं बनाए, इफ आई हैव नॉट मेंटेन माय अकाउंट्स एंड पेनल्टी हैज बीन इंपोज्ड अंडर 270A, देन 271B नहीं लग सकती, क्योंकि अगर मेरे पास अकाउंट्स ही नहीं है तो ऑडिट कहां से कराऊंगा। सो इन दैट केस दे विल इंपोज अ पेनल्टी अंडर 270A। वो कितनी पेनल्टी है? 25,000 रुपए की। तो वो अगर पेनल्टी लग गई तो 271B की पेनल्टी नहीं लग सकती। उसके बाद कुछ पेनल्टीज हैं 269SS 269T के लिए। 271D में पेनल्टी लगती है इफ अ पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट्स एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 269SS। 269SS क्या कहता है? 269 कहता है नो पर्सन शैल टेक एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम exceeding rupees 20,000 otherwise than by way of an account paying check। अगर आपने कोई लोन 20 लाख रुपए से ऊपर का, कोई डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम ले लिया 20,000 रुपए से ऊपर का, then there will be a penalty which will be 100% of that amount। अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी आपको लग जाएगी। स्पेसिफाइड सम क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। This penalty cannot be imposed by the assessing officer, he will refer it to the joint commissioner, joint commissioner will impose this penalty। What is a specified sum? Specified sum means any money receivable, whether as advance or otherwise, in relation to transfer of an immovable property, whether or not the transfer takes place। अब इसमें क्या हुआ कि जब डिपॉजिट हमने कवर करा इसमें 269SS में, तो लोगों ने जिसने कैश ले लिया हो वो दिखा देता था दैट दिस इज द कैश, दिस इज एन एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिपॉजिट में नहीं कवर करते थे, ना वो लोन था ना वो डिपॉजिट में था, तो लोग पेनल्टी से बच जाते। तो उसके लिए ये स्पेसिफाइड सम को इंक्लूड कर दिया। अब वो कहते हैं अगर आपने कोई एडवांस भी ले लिया इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट विल बी कवर्ड अंडर स्पेसिफाइड सम whether or not the transfer takes place। अब आपने उसको बाद में कैंसिल कर दिया और कैश वापस उसको आदमी को दिया, so you would say that this is only advance against property, ये लोन नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, पेनल्टी नहीं लग सकती, but now it will be covered here। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे आए where on the sale of a property, एडवांस नहीं है, where there is a sale transaction, immovable property मैंने बेची, I accept cash before the registrar, और मेरी सेल डेट में लिखा गया that so and so amount, maybe 5 lakh rupees has been paid in cash, whether that will also be covered under specified sum। अब इसमें हमने 2-3 केसेस निकाले थे where they have said कि when you use the expression specified sum that it should be as advance or otherwise, so otherwise should be in relation to advance, it does not cover transaction of sale। तो अगर सेल में कुछ पैसा लिया है, so that according to my submission should not be covered under specified sum। It is still debatable कि अगर आप रजिस्ट्री के टाइम पे, सेल के टाइम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई कैश लेते हैं तो वो इस प्रोविजन में कवर होगा कि नहीं, दैट इज स्टिल डाउटफुल। पर अगर आप एडवांस दिखाएंगे डेफिनेटली इसमें कवर हो जाएगा एंड देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ दैट अमाउंट। उसके बाद 269ST एक सेक्शन है, ये भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था इन ऑर्डर टू अवॉइड कैश ट्रांजैक्शंस। तो उसमें प्रोविजन कहता है 269ST में that no person shall receive an amount of 2 lakh rupees or more in aggregate from a person in a day, or in respect of a single transaction, or in respect of transactions related to one event or occasion from a person, otherwise that way of account pay check।
तो इसमें हम क्या कहते हैं कि एक आदमी से एक दिन में आप 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं ले सकते अगर अलग अलग ट्रांजैक्शन है। अब मान लो एक आदमी एक ही शॉपकीपर से 50-50 हजार की 5-6 ट्रांजैक्शन कर लेता है और एग्रीगेट अगर 2 लाख से ऊपर हो जाता है तो दिस प्रोविजन बिकम्स इफेक्टिव। या एक ही लेटर से उसने रिस्ट वॉच खरीदी 4 लाख रुपए की, तो एक ही ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर की है, सो देन इट कवर्स अंडर द बी क्लॉज। या इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, एक आपका शादी का ओकेजन है, उसमें आपने 2-4 अलग अलग पेमेंट्स कर दी एंड एग्रीगेट ऑफ दोस पेमेंट्स एक्सीड 2 लाख रुपीस, देन आल्सो यू आर कवर्ड अंडर 269 ST। अब 269 ST के हिसाब से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में एक आदमी से नहीं दे सकते। अगर ऐसा करा तो देन देयर इज अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271DA। अगर कॉन्ट्रीब्यूट करा 269 ST, again penalty is same amount equal to such cash receipt. Penalty to be imposed by the joint commissioner. अब 269 ST के ऊपर एक दो क्लैरिफिकेशंस आई हुई हैं कि 269 ST shall not apply to any receipts from a person from any banking company, post office or a cooperative bank। तो अगर आपको बैंक से कैश लेना है और बैंक से आप 2 लाख रुपए से ऊपर भी कैश ले लेते हैं, then 269 ST is not applicable, ना ही पेनल्टी लगेगी। या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से आप विड्रॉ करते हैं, even if the amount exceeds 2 लाख रुपीस, 269 ST is not applicable। दूसरा सर्कुलर कहता है 269 ST shall not apply receipt by a business correspondent on behalf of a banking company or cooperative bank। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं कुछ लोग जो बैंक्स वाले हैं, वो अपने जहां पर ब्रांचेस नहीं होती है छोटी जगह में एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर देते हैं जो कि बैंक के बिहाफ पर कैश रिसीव कर लेता है। तो अगर ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने बैंक के बिहाफ पर कुछ पेमेंट रिसीव करी है तो 269 ST नहीं अप्लाई होता। और वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, ये होते हैं जो बैंक्स के एटीएम्स में जो कैश डिपॉजिट करती हैं कंपनी, वो इसमें कवर्ड है। तो अगर उनको कोई पैसा मिलता है फ्रॉम द बैंक और वो बैंक्स में डिपॉजिट करना है, देन इट इज आउटसाइड द प्रोविजन ऑफ 269 ST। इसी तरीके से रिसीट फ्रॉम एन एजेंट बाय एन इंश्योरर ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये इंश्योरेंस के केस में अगर आपने कोई पैसे दिए उसमें नहीं कवर होगा। रिसीट बाय अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन इश्यूइंग क्रेडिट कार्ड्स अगेंस्ट बिल्स, उसमें नहीं कवर होगा। और receipts which are not included in the total income under section 1017A of the income tax act, ये भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं ट्रस्ट वगैरह के बारे में, तो इस पे ये 1017A नहीं लगता। नेक्स्ट पेनल्टी है 271DB के लिए 269 SU एक नया सेक्शन आया था। इसमें एवरी पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस वाज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अब इसमें प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स उन्होंने बताए थे, भीम एप्लीकेशन, यूपीआई QR कोड। अगर ये चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, इट इज नेसेसरी that you must provide these payments for accepting your payment provided, इसमें कहते हैं your gross receipts from business exceed rupees 50 crores। तो बड़े बिजनेसमैन के लिए जिनकी पेमेंट 50 करोड़ से ऊपर आती है, उस केस में you are required to provide these modes for accepting the payment। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं then there is a penalty under section 271DB। 271DB में ये है और इसमें भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, अभी बता देते हैं उसको आगे चल के। इसमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया B2B ट्रांजैक्शंस को। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर हैं एंड 95% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज अदर देन कैश, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, चेक से है, देन 269 SU विल नॉट बी एप्लीकेबल।
अगर 269 की वायलेशन करते हैं तो पेनल्टी इज 500 रुपीज फॉर एवरी डे, 5,000 रुपया पर डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। पेनल्टी लगाएगा ज्वाइंट कमिश्नर, और 273B इसमें लग जाएगा, दैट पेनल्टी शैल नॉट बी इम्पोज्ड इफ देयर वर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस। 269T कहता है that no repayment of loan or deposit or specified sum shall be by cash, it has to be by way of an account paid check etc. तो जैसे हम लोन ले नहीं सकते, 20,000 से ऊपर का लोन वापस भी नहीं कर सकते, तो लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफिक एडवांस, तीनों चीजें, रीपेमेंट इसमें कवर्ड है। इसमें भी 100% ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी है अगर आप कोई लोन वापस कर देते हैं। पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर। 271FA एक नई पेनल्टी है, फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट। अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वैसे भी मॉनिटर करने के लिए टैक्स इवेजन को गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी है। लॉट ऑफ एजेंसीज हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो इफ देयर आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है जो आपने रिपोर्ट करनी है, and you do not report that, then there is a penalty of 500 rupees per day for the failure. These all are in order to ensure the compliance of the requirements. 271FA भी इसी तरीके से पेनल्टी है, to furnish statement of financial transactions or reportable account. इसमें पेनल्टी थोड़ी ज्यादा है, इट इज 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। ये सारी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस के लिए है, दिस इज नॉट कंसर्निंग एवरी एसएससी, पर जो एजेंसीज को रिपोर्ट करनी है अगर वो नहीं रिपोर्ट करती तो उनके लिए ये पेनल्टी है। टू 271GA में भी एक पेनल्टी लगती है, वेयर इट इज फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 285A। अब 285A में इसको देख लीजिए, 285A क्या कहता है? 285A mandates every Indian concerned to furnish information or documents regarding the shares or interest in a foreign company. लेकिन अगर इंडियन कंसर्न के फॉरेन कंपनी में कोई शेयर्स है या कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो दे हैव टू डिस्क्लोज दैट। दिस एमिनेटेड फ्रॉम द वोडाफोन केस। तो जहां पर हमने कहा इफ यू होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करने के लिए 285A सेक्शन आ गया। So now in these cases you have to disclose this interest to the government, 285A. If you fail to do that, then there is a penalty, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में थी, 2% of the value of the transaction. ठीक है, 2% of the value of the transactions अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, और नहीं तो अगर आपको नहीं थी इंफॉर्मेशन फिर भी उसके बारे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन है, then it is a fixed amount of 5 lakh rupees. 273B में बता रहा था, 273B में ये सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। इन सेक्शंस के केसेस में you can show that there is a reasonable circumstance for not complying with the provisions, then you can escape the penalty. इन सारे सेक्शंस में जितनी नई पेनल्टीज आई हैं, 270A, 271AA, 271AC, 271AD, वो इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी जो भी पेनल्टीज अब नई लगा रहे हैं उसमें रीजनेबल कॉज वगैरह की अब ये प्रोविजन ओमिट कर रहे हैं। अगर आपने डिफॉल्ट करा तो पेनल्टी लग जाएगी। I think that should be the end, and I think we have gone through all the penalties which have been recently imposed, which we should be aware of. If there are any questions, we can take it up. एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड अ फाइन, पेनल्टी और टैक्स में फर्क क्या है? तो कहते हैं जी टैक्स इज अ फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। अगर आपने कुछ काम ठीक ठाक कर लिया तो आप उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए, इट इज अ फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। एंड व्हाट इज अ पेनल्टी? पेनल्टी इज अ टैक्स फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग।
तो अगर आपने कुछ काम गलत कर दिया तो आप पेनल्टी दे दीजिए, ठीक कर दिया तो टैक्स दे दीजिए। तो आइदर टैक्स, पेनल्टी या दोनों चीजें ये साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव यू कैन टेक देम अप। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब आपने इतना बढ़िया समझाया है कि शायद क्वेश्चंस आने ही बंद हो गए हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में इट इज रियली अरे जी, क्वेश्चंस ना आने का मतलब दो हो सकता है, या तो समझ आ गया या किसी को कुछ समझ नहीं आया। नहीं सर, ये तो इन आइदर वे इट इज फाइन। it is really a wonderful presentation. It is a lucid presentation. You have made it so simple. We all have gained a lot. Over to Vipul Mata ji for formal vote of thanks. एक चीज और कहना चाहूंगा सर, आपने within time और बहुत अच्छे तरीके से penalties की provisions को लिया है, and we are very thankful to you. Over to Vipul Mata ji for formal vote of thanks. Thank you, Ajay ji. Good evening, friends. We have witnessed an absolutely remarkable session with Dr. Ravi Gupta ji. It is indeed our honor and privilege to have you, sir, with us. You have been an inspiration to all of us, and the manner in which you have dealt with the entire topic that was assigned to you, that only motivates us to get deeper into the law. Thank you so much, sir. On behalf of all the members of Rohini Study Circle, I would like to express a heartfelt thanks to you, sir. Also, I cannot rest my tongue without thanking Ashok ji for his dedication towards preparing and presenting the summary on latest developments. Thank you so much, sir, for providing us this mini tax encyclopedia. Thank you so much. With this, we close the session for today. Thanks for joining. Have a wonderful evening. God bless. Thanks. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you, sir.